theory base of accounting, accounting standards and Indian accounting standards. So let us study this today. Accounting principles, concepts, conventions commonly known as Generally Accepted Accounting Principles or GAAPs. These are the basic rules that define the parameters and constraints within which accounting operates. These are guidelines for preparing the financial statements. So accounting करते वक्त, whenever we are writing accounts for some firm, business firm, it may be sole proprietors firm, it may be partnership firm, it may be company, it may be joint Hindu family, whatever. So जब भी हम accounts लिखते हैं, accounting records maintain करते हैं, financial statements करते हैं, लिखते हैं, वो करते वक्त हमें it is important that we follow the generally accepted accounting principles. तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? ये है जनरल गाइडलाइंस कि किस तरह से हमें अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स लिखने हैं, हमें कौन से रूल्स इसमें फॉलो करने हैं, कौन से प्रिंसिपल्स या कन्वेंशंस इसमें फॉलो करने हैं. सो दिस इज रिगार्डिंग दी GAAP. तो पार्टनरशिप फर्म्स वगैरह जो है या इवन सोल प्रोप्राइटर्स फर्म, उनके लिए जो भी एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स है या रूल्स है वो इशू करेगी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया. तो जनरली ये इंस्टीट्यूट जो भी रूल्स रेकमेंड करती है तो गवर्नमेंट उसको पास कर देते हैं एंड दे एक्चुअली मेक इट एज यू कैन से इट इज जस्ट लाइक लॉ. CA की इंस्टीट्यूट जो है वो जो सारे स्टैंडर्ड्स इशू करेगी एंड प्रैक्टिसेस इशू करेगी वो सारे ही रिकमेंडेटरी होंगे एंड सभी फर्म्स को वो फॉलो करने पड़ेंगे. नाउ कंपनीज के लिए जो होता है, कंपनीज के अकाउंट जो लिखे जाते हैं वो भी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ही होंगे. बट ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है या ये अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस है जो कंपनी को फॉलो करनी है वो लिखी होगी कंपनीज एक्ट में. तो कंपनी एक्ट जो है कंपनी के लिए अकाउंट्स लिखने के लिए कौन से स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं या प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं वो सब उसके बारे में डिटेल्स दिया होगा कंपनी के एक्ट में. सो लेट अस नाउ रेफर टू द अकाउंटिंग कंसेप्ट्स. Accounting concepts are the basic assumptions or fundamental propositions with which accounting operates. They are generally accepted accounting rules based on the transactions recorded and financial statements prepared. तो ये जो भी concepts है वो क्या होता है, कोई ना कोई rules है, कोई ना कोई principles है जिसके basis पे ये concepts बने हैं और ये generally accepted है, ये हर जगह पे accepted है. You can say within the boundaries of India and even beyond the boundaries of India also. So ये जो concepts है वो follow करना है किसी भी firm को, business firm को, when they are actually drawing up the financial statements of their business. Then होते हैं accounting conventions. Now these conventions are the outcome of accounting practices or principles which have been followed by the entities for over a period of time. They may undergo a change, but with time there may be improvement in the quality of accounting information. ये accounting conventions क्या है, वो भी एक टाइप के practices या principles या rules ही हैं, पर ऐसे rules या practices हैं जो लंबे समय से business world में या accounting world में, accounting recording world में ये चलते आ रहे हैं. ये रूल्स और प्रैक्टिसेस फॉलो किए जाते हैं लंबे समय से, सालों से ये चल रहा है कि इसी तरह से अकाउंटिंग करना है, इसी तरह से अकाउंट्स बुक्स लिखनी है. ये कन्वेंशंस जो है कभी कभी ज़रूरत पड़ती है कि इनको भी चेंज करना पड़ता है, बट वॉट एवर यू आर चेंजिंग अगेन दैट मस्ट बी फॉलोड फॉर ईयर्स टुगेदर. सो दीज आर अकाउंटिंग कंसेप्ट्स. अकाउंटिंग कंसेप्ट मतलब बेसिक अजम्पशंस होते हैं या फंडामेंटल प्रोपोजिशंस होते हैं in which accounting operates, and accounting conventions is the outcome of accounting principles or accounting practices which have been followed by any entity for a period of time. So now let us understand the features of accounting principles. Accounting principles are man-made. हाँ, ये तो सही है कि ये accounting principles किसने बनाए हैं, ये तो man-made है, ये हम लोगों ने ही, human beings ने ही बनाए हैं. So yes, they are recommended for the use by the enterprise to ensure uniformity and understandability.
अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो क्यों करने हैं? ताकि सभी के जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर टेकिंग एनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत सारे अलग अलग बिजनेस फर्म्स होंगे या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होंगे, तो सभी के अकाउंट्स जो है, फॉर इसमें एग्जांपल्स कौन से हो सकते हैं? आपका गार्डन रेली हो सकता है, रेमंड हो सकता है, पार्क एवेन्यू हो सकता है, इस अलग अलग कंपनीज होंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। तो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अलग अलग जो फर्म्स हैं, अगर सभी ने अलग अलग तरीके से अकाउंट्स मेंटेन किए तो क्या होगा? कोई लिखेगा कि नहीं हम इस तरह से एंट्री नहीं करेंगे, हम उस तरह से एंट्री करेंगे। कोई बोलेगा कि नहीं हम कैश बुक मेंटेन नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसी तरह से उसकी एंट्री करेंगे, या इस तरह से अलग अलग अगर सबने मेथड फॉलो किया, तब क्या होगा कि एक तो कंपैरिजन पता नहीं चलेगा, फिर सभी का टोटल अगर हमको करना है कि पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए अगर हमको कंसिडर करना है, तो वो पूरा नहीं कर पाएंगे, अच्छी तरह से हम उसको कंपाइल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सबने अलग अलग डाइवर्स मेथड्स यूज की है अकाउंटिंग के लिए। सो यस, देयर शुड बी सम यूनिफॉर्मिटी, कोई ना कोई यूनिफॉर्मिटी होगी तो ही हम कुछ अच्छा एनालिसिस या इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं या कंपैरिजन पॉसिबल है। एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी, कोई कहता है कि नहीं हम लोग ये पर्टिकुलर लैंग्वेज में अकाउंट्स लिखेंगे, कोई कहता है कि नहीं हमारी लैंग्वेज तो वो है तो हम उस लैंग्वेज में लिखेंगे अकाउंट्स, कोई कहता है नहीं हमारे पास कंप्यूटर है तो हम कंप्यूटर पे अकाउंट्स लिखेंगे, कोई कहता है नहीं हमें कंप्यूटर तो आता नहीं, हम लोग मैन्युअली ही अकाउंटिंग करेंगे। तो इस तरह से सब लोग अगर अलग अलग तरीके से अकाउंट्स रखेंगे, तो ये पढ़ने वाला जो है, चेक करने वाला जो है, चेक कौन करता है अकाउंट्स को? एक तो खुद अकाउंटेंट ओनर भी चेक करता है, ऑडिटर चेक करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी चेक करते हैं, गवर्नमेंट भी चेक करती है। तो ये सब जो अकाउंट्स को चेक करते हैं या इवन अकाउंट्स को रीड करते हैं फॉर दैट मैटर, हमने देखा है यूजर्स ऑफ अकाउंट्स कौन कौन होते हैं? इंटरनल यूजर्स एज वेल एज आउटसाइडर्स, जैसे है ओनर्स, एम्प्लॉइज, मैनेजमेंट, फिर होते हैं एक्सटर्नल में गवर्नमेंट, बैंकर्स, क्रेडिटर्स, कस्टमर्स, ये सारे जो है इवन पब्लिक एट लार्ज। तो ऑल दीज यूजर्स और रीडर्स और चेकर्स ऑफ अकाउंट्स, वेरीफायर्स ऑफ अकाउंट्स, जो ऑडिटर्स ऑफ अकाउंट्स है, तो ये सब लोग जो अकाउंट्स को देखेंगे, उनको आपने जो लिखे अकाउंट वो समझ में भी आने चाहिए। तो वो समझ में आएंगे तभी जब एक ही कोई कॉमन लैंग्वेज होगी, वरना आपका जो ऑडिटर है कोई राजस्थानी लैंग्वेज बोलता होगा और आपने लिखा होगा शायद गुजराती में या मराठी में या हिंदी में, तो उसको शायद चेक करने में, ऑडिट करने में तकलीफ हो सकती है। तो एक कॉमन लैंग्वेज की भी ज़रूरत है, ये किस तरह आपको लिखना है, कोई कॉमन प्रैक्टिसेस की ज़रूरत है। सो इसीलिए ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बनाए हैं, एंड दीज आर मैन मेड। दे एंश्योर यूनिफॉर्मिटी एज वेल एज अंडरस्टैंडेबिलिटी। देन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल, means what? They are not rigid, they are elastic and flexible. They are not permanent. वो परमानेंट ही आपको वैसे के वैसे फॉलो करने ऐसा नहीं है, कभी कभी उनको चेंज करना ज़रूरत होती है। इट इज़ अ नीड ऑफ द टाइम, देन येस दे मे बी चेंज्ड, बट स्टिल यू कैन से दे आर flexible and not rigid. Okay, so not of permanent nature as such. They will change with time as per the necessity of time. Then accounting principles are generally accepted. These are basis and guidelines for accounting and they are accepted. You can say not just generally, universally भी accepted है कि these accounting principles are universally accepted. Just like the principles of pure sciences. आप लोग डेबिट और क्रेडिट का जो रूल्स है, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, जो इंडिया में फॉलो किए जाते हैं वही आउट ऑफ इंडिया भी फॉलो किए जाते हैं। सो आप यूएस में जाओ, यूके में जाओ, तो रूल्स एज सच तो सेम ही होंगे, बेसिक अकाउंटिंग रूल्स जो है या थ्योरी जो है अकाउंटिंग की। सो यस, दीज आर जनरली एक्सेप्टेड। देन द जनरल एक्सेप्टेंस यूजुअली डिपेंड्स अपॉन 3 क्राइटेरियाज, एंड दैट फर्स्ट क्राइटेरिया इज रेलिवेंस, कि the principles are relevant if they result in the information that is useful. Principle of relevance आप इसको कह सकते हैं कि ये जो accounting principles है वो relevant कब माने जाएंगे? जब वो अपने users के लिए useful prove होंगे। अगर users के लिए आपने जो information provide की है users के लिए, एक तो maybe it is not that meaningful, तो भी वो रेलिवेंट नहीं होगी। अगर उनको समझ में नहीं आ रही है, ऐसे लैंग्वेज में है, तो भी रेलिवेंट नहीं होगी। सो यस, रेलिवेंस इज इम्पॉर्टेंट। सो आपने जो भी प्रेजेंट किया है अकाउंटिंग बुक्स में, वो एक तो रेलिवेंट होना चाहिए, रिलेटेड टू बिजनेस, इन टर्म्स ऑफ मनी होना चाहिए, एंड
इन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म एंड लैंग्वेज होना चाहिए. सो येस, रेलिवेंस इज इम्पॉर्टेंट. देन ऑब्जेक्टिव. द प्रिंसिपल्स आर ऑब्जेक्टिव इफ दे आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्सनल बायस. तो जो भी अकाउंटिंग करते हैं या इवन ओनर्स ऑल्सो, अकाउंटेंट्स, ओनर्स, मैनेजर्स, हुएवर, सो अपना पर्सनल बायस जो है, अपने पर्सनल धारणा या मान्यता जो है वो बीच में नहीं लाए अकाउंटिंग करते वक्त, तो ज़्यादा अच्छा रहता है. सो एक थर्ड पर्सन तरीके से आपको अकाउंटिंग करनी है. यू शुड नॉट मिक्स योर पर्सनल बायस, यू शुड नॉट मिक्स योर personal opinions whenever you are doing accountant's job. You have to be very alert for this. Then flexible. Accounting principles are feasible if they can be applied without undue complexity and cost. Yes, accounting principles flexible तो होते ही होने भी ज़रूरी है. Whenever it is necessary, yes, it has to be flexible, but these must be feasible and they must be applied विदाउट एनी कॉम्प्लेक्सिटी. आप जब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अप्लाई करते हो, जब हम कहते हैं कि यस अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मस्ट बी फीजिबल, दैट मीन्स दे शुड बी अप्लाइड विदाउट अनड्यू कॉम्प्लेक्सिटी. तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन नहीं करना है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है. आपको सिंपली देखना है कि किस तरह से अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को आप अप्लाई कर सकते हो अपने अकाउंट्स लिखते वक्त. एंड ऑल्सो दे मस्ट बी चेक फॉर देयर कॉस्ट एंड बेनिफिट फिजिबिलिटी. दैट इज कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है कि आपको आपके 2 या 4 ट्रांजैक्शंस हैं, पर उसके लिए आप सिर्फ 2-4 ट्रांजैक्शंस के लिए आप इतना सारा अकाउंट का रजिस्टर लेके आओ, बुक लेके आओ, कैश बुक हो या लेजर बुक हो, तो वो कोई ज़रूरी नहीं है. सो यू शुड ऑल्सो सी द कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस ऑल्सो, कि 2 या 4 ट्रांजैक्शंस के लिए आप 100 पेजेस का बुक लेके नहीं आओगे. दैट इज कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस. अगर 2 या 4 ही ट्रांजैक्शन से बस एक पेपर पे लिख लो तो भी चलेगा और पेपर को प्रिजर्व करके रखो. दैट्स इट. अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज बेटर अंडरस्टूड इफ इट इज प्रिपेयर्ड फॉलोइंग द सेट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स यूनिफॉर्मली. तो अगर आप अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स यूनिफॉर्मली फॉलो करते रहते हो, so that is what is required. If you are not applying them uniformly, then they may not be meaningful. So हमें जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है उसको मीनिंगफुल बनाने के लिए, और वो भी मीनिंगफुल किसके लिए बनाने हैं? यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग के लिए. So to make the accounting information meaningful for the users of accounting, we have to apply the accounting principles, and that too uniformly. Now let us understand the fundamental accounting assumptions or concepts. The following are called as fundamental accounting concepts or assumptions. So let us understand which are these. The organizations or entities which do not follow any of the fundamental accounting assumptions are required to disclose which of these assumptions they have not been following. तो ये जो भी fundamental accounting assumptions है वो सभी को follow करने हैं, और किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने अगर इसमें से कोई अकाउंटिंग अजम्पशन फॉलो नहीं किया है तो उनको अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के बाद में या लास्ट में लिखना पड़ेगा कि हमने ये वाला पर्टिकुलरली कोई भी एक उसमें से अगर जो उन्होंने अप्लाई नहीं किया है तो वो पर्टिकुलर अकाउंटिंग अजम्पशन उन्होंने अप्लाई नहीं किया है, यूज नहीं किया है while doing the recording of the transaction. So if at all they have missed out any one, they have to disclose it at the end of the financial statements, or you can say by way of notes to accounting. उनको लिखना होगा, they are required to disclose it कि which of the accounting assumptions they have not followed while recording the transactions. So let us understand that. So according to AS1, that is Accounting Standard 1, disclosure of accounting policies, in that they have given that following accounting assumptions or fundamental accounting assumptions must be followed by every business organization for recording their transactions. So let us see the first one, going concern assumption or going concern concept. Now according to this, it is assumed that the business shall continue for a foreseeable period, foreseeable future, and there is no intention to close the business or scale down its operations significantly. मतलब ये assumption क्या कहता है कि कोई भी business organization जिसके लिए आप accounts लिख रहे हो वो business भविष्य काल में भी, आने वाले फ्यूचर में भी चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा. तो ऐसी कोई नौबत नहीं आई है या ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है बिजनेस ओनर का
कि वो बिजनेस के ऑपरेशंस कम कर देगा या लार्ज स्केल बिजनेस है तो स्मॉल स्केल कर देगा। ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, कोई इंटेंशन नहीं है बिजनेस ओनर का। इसका मतलब भविष्य में भी, आने वाले कल में भी ये बिजनेस चलता रहेगा जैसे वो आज चल रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एज गोइंग कंसर्न अजम्पशन। ये एक अजम्पशन है, हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि हाँ हमारा बिजनेस जैसे ही आज चल रहा है वैसे आगे भी चलता ही रहेगा, बंद नहीं करना है ऐसे। तो ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि बिजनेस बंद करना है। दिस इज व्हाट इज अज्यूम्ड। और ये अज्यूम क्यों करना है? वाई वी हैव टू अज्यूम दिस? बिकॉज फर्स्टली वी आर रिकॉर्डिंग ऑल द ट्रांजेक्शंस। अगर हमने आज बिजनेस चालू किया है और उसको कल बंद करना है, या आज बिजनेस चालू किया है और एक हफ्ते में बंद करना है, अगर हमको ये पता है तो इतना सारा हम लोग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इस तरह से मेंटेन नहीं करेंगे। एक तो उसमें खर्चा, फिर टाइम, ये सब कुछ होता ही है ना। खर्च, पैसे में भी खर्च हो जाएगा एंड इवन टाइम इज ऑल्सो स्पेंट और वेस्टेड इन दैट केस। सो अगर हमको पता ही है कि बिजनेस थोड़े ही दिन चलने वाला है तो ये सारी एक्सरसाइज तो कोई करने नहीं वाला है। सो व्हाट वी आर अज्यूमिंग कि ओके दिस बिजनेस इज गोइंग टू कंटिन्यू in the foreseeable future also. So there is no intention of the business owner to close down business in future. So ये करना क्यों है? Why we are assuming that? एक तो कि हम लोग अकाउंटिंग में जो कॉस्ट लिखते हैं एसेट्स की, whenever we are recording the assets in our books of accounts, वो हम कॉस्ट बेसिस पे लिखते हैं। जैसे आज हमने कोई फर्नीचर खरीदा है या आज हमने कोई कार या बिल्डिंग ऐसा कुछ खरीदा है, एसेट खरीदा है, तो जिस अमाउंट पे खरीदा है और जिस दिन खरीदा है उस दिन की वो अमाउंट पे हम लोग बिजनेस में उस एसेट को रिकॉर्ड करते हैं। दैट इज कॉल्ड एज हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो अगर हमको पता है कि आज हमने बिजनेस चालू किया, कल हम बेचने वाले बिजनेस को या कल बिजनेस बंद करने वाले, तो एग्जैक्टली कौन सी कॉस्ट उस पर्टिकुलर एसेट की हमें रिकॉर्ड करनी है, आज की या कल की। क्योंकि हो सकता है कि कुछ एसेट्स की वैल्यू दिन ब दिन बढ़ती जाएगी या कम हो सकती है। सो इन दैट केस आज अगर किसी एसेट की वैल्यू, जैसे हमने आज बिल्डिंग खरीदा है तो हो सकता है कि वो 50 लाख का है, बट कल या परसों या एक हफ्ते में अगर बिजनेस बंद करना है और एक हफ्ते में वो बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई है, इट हैज बिकम 75 लाख, देन व्हाट यू विल डू? तो वो रिकॉर्डिंग करते वक्त आपको प्रॉब्लम आ सकती है। सो यू हैव टू टेक केयर कि at what cost then you will record the assets, and hence we have to assume that we are following or the organization is a going concern, and we are assuming that okay we are following the going concern assumption or going concern concept, क्योंकि हम assume करने वाले हैं कि हमारा बिजनेस जो है जिसके लिए हम अकाउंट्स लिख रहे हैं वो बिजनेस साल दर साल एवरी ईयर इट इज गोइंग टू कंटिन्यू एंड ग्रो एंड एक्सपांड। तो ये अज्यूम करते हैं, इसीलिए फिर हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पे एसेट्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अदरवाइज हमारा जो भी रिजल्ट होगा, जो भी एसेट्स से कैलकुलेशन होगी वगैरह, तो वो डिस्टॉर्टेड व्यू दिखेगा। दैट विल नॉट बी अ करेक्ट व्यू ऑफ अवर ट्रांजैक्शंस। देन नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी assumption. According to this, accounting practices once selected and adopted should be applied consistently. तो जो भी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस हमने सिलेक्ट की हुई है तो वो प्रैक्टिसेस हमको साल दर साल, दैट इज एवरी ईयर, वी हैव टू फॉलो दीज अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस विच एवर वी हैव सिलेक्टेड। कंसिस्टेंटली फॉलो करनी है, रेगुलरली फॉलो करनी है। ऐसे नहीं है कि 2-4 साल हमने कंटिन्यूसली फॉलो कर दिया, फिर 5वें साल में नहीं किया, फिर 3-4 साल हमने कर लिया, फिर और एक साल में डिसकंटिन्यू किया। तो ये डिसकंटिन्यू बार बार नहीं करना है। आपने जो भी मेथड सिलेक्ट की है, आपने जो भी प्रैक्टिसेस सिलेक्ट की है, वो आपको कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली फॉलो करते रहना है हर साल में। ओके, देयर मे बी अ रीजन, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमें वो मेथड चेंज करनी पड़े किसी वजह से। सो इन दैट केस यू हैव टू डिस्क्लोज, आपको लिखना पड़ेगा अकाउंट्स के नीचे कहीं ना कहीं वर्किंग नोट में या नोट्स टू अकाउंटिंग में, क्योंकि इस साल हम लोग ये पर्टिकुलर मेथड डेप्रिसिएशन की चेंज कर रहे हैं। तो अगर आपने कोई मेथड चेंज की है, कोई प्रैक्टिस आप चेंज करना चाहते हो, सो इन दैट केस येस यू कैन मेंशन इन दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन द नोट्स टू अकाउंटिंग कि हमने ये पर्टिकुलर मेथड इस साल चेंज की है, और चेंज का जो भी इफेक्ट होगा वो भी आपको उसमें दिखाना पड़ेगा। फिर जो भी चेंज किया हुआ न्यू मेथड है वो आपको कंसिस्टेंटली फिर फॉलो करनी है। सो वट एवर यू आर अडॉप्टिंग एज योर प्रैक्टिस ऑफ writing the accounts, all these practices must be consistently followed, regularly followed year after year. So this is
regarding the, say example was method of depreciation or method of valuing the stock or goods, और मे बी कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑल्सो, कि आप सिंपल मेथड से करने वाले हो या कंपाउंडिंग मेथड से इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे या आप एवरेजेस लोगे, वेटेड एवरेजेस लोगे. सो दीज आर डिफरेंट मेथड्स एंड मे बी चेंज समटाइम्स, बट दीज शुड बी फॉलोड consistently. The accrual assumption. According to this accrual assumption, the transaction is recorded in the books of accounts at the time when it is entered into and not when the settlement takes place. तो जब भी ट्रांजैक्शन होता है, जिस दिन ये हैपनिंग या इवेंट हो रही है, जिस दिन ट्रांजैक्शन हो रहा है, उसी दिन आपको उसकी एंट्री कर देनी है, न कि जिस दिन सेटलमेंट हुआ. तो सेटलमेंट तो कभी भी हो सकता है फ्यूचर डेट पे, बट व्हेनेवर द पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन वॉज एंटर्ड इनटू, उसी दिन आपको उसकी एंट्री करनी है. दिस इज व्हाट एक्रूअल अजम्पशन स्टेट्स. दैट मीन्स द रेवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट इज रियलाइज्ड and when sale is complete or services are rendered. In this case, it is immaterial whether the cash was received or not at that time. तो जब भी आपको रेवेन्यू कब लिखना है अकाउंट्स के बुक में, जब एक्चुअली वो सेल्स हुआ है, सेल्स का ट्रांजैक्शन हुआ है. तो सेल्स के ट्रांजैक्शन में गुड्स एक्सचेंज होंगे कैश के लिए. तो जिस दिन ये गुड्स एक्सचेंज हो गए हैं, आपको उस दिन एंट्री करनी है, भले ही कैश का पेमेंट डिलेड हो. ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज एक्रूअल अजम्पशन. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द अदर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. द earlier three which we saw, that is going concern concept, consistency concept and accrual assumption, these were fundamental or basic accounting principles. So now let us understand the other accounting principles. The first one is accounting entity or business entity principle. According to this, the business entity principle, the business is considered to be separate from its owner. Now whenever we record the transactions in the books of accounts from the business point of view and not from the point of view of owners, that means what we are doing is we are considering the owners different from the business firm. तो यहाँ पे क्या है, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट. एक तो एंटिटी मतलब ऑर्गेनाइजेशन या कंसर्न भी बोलते हैं. यहाँ पे कंसर्न का मीनिंग कोई चिंता या काळजी नहीं होता है. यहाँ पे जो कंसर्न का मीनिंग है, इट इज बिजनेस एंटिटी और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस एंटरप्राइज भी उसको कह सकते हैं. सो यस, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और उसका ओनर, यहाँ पे इस कंसेप्ट में ऐसा समझा जाएगा कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और उसका ओनर दो अलग अलग चीजें हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिकॉर्डिंग इट. बिकॉज वी नो, अगर कोई सोल प्रोप्राइटर है, अगर वो सोल प्रोप्राइटर उसका बिजनेस है, सपोज द बिजनेस इज ऑफ से रेडीमेड गारमेंट्स ओनली, तो उसका कोई शॉप है क्लॉथ्स का या क्लोथ्स का भी, तो क्लॉथ और क्लोथ वो दोनों बेचता है, रेडीमेड गारमेंट्स भी बेच रहा है. सो इन दैट केस द ओनर ऑफ द शॉप, और शॉप का नेम हो सकता है कि चलो XYZ कंपनी, शॉप का नेम है XYZ कंपनी, बट ये खुद जो है इसका नेम है सपोज राम. तो राम इज द ओनर एंड XYZ कंपनी ये जो शॉप का नेम है. तो दोनों अलग अलग चीजें हैं अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट. इसका मतलब ये जो राम है उसने अपने बिजनेस में XYZ कंपनी वाले शॉप में उसने बहुत सारे पैसे लगाए होंगे, क्योंकि बिजनेस चालू किया तो आपको पैसों की कैपिटल की जरूरत पड़ती है. हो सकता है उसने 5 लाख कैपिटल उसमें डाला हुआ है और बाकी का सारा अलग, जैसे एसेट्स जो फर्नीचर या कोई मशीनरी होगी, तो जैसे कंप्यूटर्स है, फिटिंग्स है, ट्यूबलाइट्स है, ये सारे फर्नीचर और एसेट्स डिफरेंट है, बट कैपिटल इज 5 लाख एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एसेट्स है. तो ये जो भी पैसा उसने बिजनेस पे लगाया है, सो वो पैसा जब भी ये बिजनेस बंद करेगा राम, तो उस केस में व्हेनेवर दिस बिजनेस इज क्लोज्ड, इट इज एक्सपेक्टेड दैट बिजनेस में जो भी पैसा लगाया है 5 लाख और वॉट एवर एक्स्ट्रा, वो सारा का सारा 5 लाख राम को वापस मिल जाना चाहिए ऑन द क्लोजर ऑफ बिजनेस. ये क्यों? क्योंकि राम ने बिजनेस में पैसा लगाया है. तो नाउ इट इज द लायबिलिटी और जिम्मेदारी ऑफ दैट बिजनेस. ये बिजनेस की जिम्मेदारी है कि वो बिजनेस जब क्लोज हो रहा है तब राम को कुछ ना कुछ या सब कुछ दे दे जो भी उसने राम ने उसमें लगाया है. सो ये ऐसा क्यों पॉसिबल है? क्योंकि बिजनेस अलग है
मतलब शॉप एक अलग एंटिटी है और ओनर राम एक अलग एंटिटी है, ऐसा समझा जा रहा है। इसलिए, क्योंकि ऐसा क्यों समझना है, क्योंकि हमें अकाउंटिंग में इजी पड़े, इसलिए वी हैव टू सी द ईज इन अकाउंटिंग ऑल्सो, वरना हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसका पैसा है, किसकी लायबिलिटी है, किसका एसेट है। तो कंफ्यूजन नहीं हो और अकाउंटिंग वे से करेक्ट हो, सो इसके लिए हमें ये अकाउंटिंग एंटिटी कंसेप्ट या बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट समझना है। सो फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू वी हैव टू रिकॉर्ड द transactions. We will not record the transactions from the owner point of view. ठीक है, तो यहाँ पे तभी हम फॉलो कर पाएंगे बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। Then comes money measurement principle. Now, according to money measurement principle, the transactions and events that can be measured in money terms are recorded in the books of accounts of the enterprise. Money is a common denominator. तो जो भी मनी होगा दैट इज कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, अगर ऐसा ही कोई कॉमन डिनोमिनेटर है आपके एक्सचेंज में या ट्रांजैक्शंस में, तो ओनली दोज ट्रांजैक्शंस विल बी रिकॉर्डेड इन दी अकाउंट्स। इन दैट केस whichever transactions are there, say just like barter trade में क्या होता है, goods are exchanged for goods, तो such transactions will not be part of our accounting records. So only those transactions will be recorded which are firstly business related and other thing that they have the common medium of exchange, that is currency or money. So only those transactions will be recorded in the books of accounts which can be monetarily measured. But this particular principle has two limitations. So let us understand which are these limitations. Firstly, the transactions and events that cannot be measured in money terms are not recorded. So जो non-monetary transactions होंगे, they will not be recorded in our accounts. However important they are, but yes, they are not recorded in accounts even if they are very important. Then the other limitation is the value of money is considered to have static value as the transactions are recorded on the transaction date. तो जिस दिन ट्रांजैक्शन हो रहा है उस दिन की आपको वैल्यू लिखनी है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। मैंने जैसे बोला कि आज बिल्डिंग की वैल्यू है कुछ 10 लाख और आप 2 या 3 दिन बाद या हफ्ते भर बाद की वैल्यू अगर देखते हो तो वो हो सकता है कि 15 लाख हो गई हो, बट आपका ट्रांजैक्शन अगर आज हुआ है तो आप आज की वैल्यू ही लिखोगे, भले उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ गई है कि कम हो गई है, दैट इज डिफरेंट। सो यस, मनी वैल्यू it is static in this case and we do not record the transactions at the market value. We are recording the transactions on the date of the transactions, जो भी उसकी वैल्यू होगी वही वैल्यू पे हम रिकॉर्ड करते हैं। So this is money measurement principle. The next principle is accounting period principle. According to this principle, life of enterprise is broken into smaller periods. अभी हम कहते हैं कि गोइंग कंसर्न है, इसका मतलब हमारा बिजनेस इनफाइनाइटली अनलिमिटेड पीरियड के लिए चालू रहने वाला है। अब अनलिमिटेड पीरियड के लिए अगर बिजनेस चालू रहने वाला है तो हम उसका प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो तो पता ही नहीं होगा। इनफाइनाइट ईयर्स के लिए कैसे प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे? सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू ब्रेक डाउन द लाइफ ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की जो लाइफ है हम ब्रेक डाउन करते हैं से अकाउंटिंग पीरियड्स में। नाउ दीज अकाउंटिंग पीरियड्स मे बी से 1 वीक, 1 मंथ, 15 डेज, 6 months, 3 months जैसे क्वार्टर या हाफ ईयरली या इवन एन्युअली, दैट इज पर ईयर। सो अकाउंटिंग पीरियड आपका कितना भी बड़ा या छोटा हो सकता है, 15 डेज से लेके 1 मंथ, 1 वीक, अ क्वार्टर, 6 months और 1 ईयर। एट सम टाइम्स इट मे एक्सीड 1 ईयर ऑल्सो, दैट इज 12 months से भी कभी कभी ज्यादा हो जाता है, मे बी इन केस ऑफ कंपनीज समटाइम्स। सो यस, 12 months से ज्यादा कभी कभी हो सकता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि इट विल ऑलवेज बी 12 months ओनली। सो दिस इज अकाउंटिंग पीरियड। जस्ट टू कैलकुलेट द प्रॉफिट एट certain point of time, the life of the organization, business organization is broken down into certain accounting periods which are measured at regular intervals. तो हमें जो बिजनेस का परफॉर्मेंस है वो मेजर करना है, इसलिए हम लोग लाइफ ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन वी आर ब्रेकिंग डाउन इनटू सम रेगुलर इंटरवल्स और पीरियड्स। अब ये है कि हर एक का अकाउंटिंग पीरियड अलग अलग हो सकता है। जैसे फॉर अकाउंटिंग पर्पज द पीरियड दैट वी एक्चुअली टेक इनटू कंसिडरेशन इज द अकाउंटिंग ईयर एंड आवर अकाउंटिंग ईयर फॉर अकाउंटिंग पर्पज स्टार्ट्स ऑन 1st April. So whatever accounts are written up, it should start from 1st April and they end
on the 31st March of the next year. So this is one accounting year period. Now this also may change. Generally educational institutions, उनका accounting year कब start होता है? Somewhere maybe in the maybe in April or maybe even in June. In some cases it is in June. So their accounting period may start from and end at June to May. तो किसी किसी का ऐसा भी होता है. तो मे बी सम बिजनेसमैन हु ट्रेडिशनली फॉलो द ईयर, तो जैसे गुजरात में या मैनी प्लेसेस बिजनेस हाउसेस जो या शॉप्स है, तो वो शॉप्स अपना बिजनेस कब चालू करते हैं? न्यू ईयर डे पे. उनका न्यू ईयर कब होता है? दिवाली में. तो दिवाली टू दिवाली दे मेंटेन देयर रिकॉर्ड्स और अकाउंट्स और डू द बिजनेस रादर. बट अकाउंटिंग के लिए जो हमें ये अकाउंट जो हमें यूजर्स के लिए बनाने हैं या हमें गवर्नमेंट ऑफिसेस में इसके सेट देने पड़ते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, तो उनके पर्पस के लिए हमारा जो अकाउंटिंग ईयर होता है दैट इज फ्रॉम अप्रैल टू मार्च. सो यस, दिस इज कॉल्ड एज अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट. देन लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल. According to full disclosure principle, there should be complete and understandable reporting on the financial statements of all significant information relating to economic affairs of the entity. तो इस प्रिंसिपल के हिसाब से आपने अकाउंटिंग करते वक्त जो भी एक तो प्रैक्टिसेस या प्रिंसिपल्स फॉलो किए हैं वो आपको लिख देने हैं कि हमने ये फॉलो किया है और वी आर फॉलोइंग इट कंसिस्टेंटली, तो वो भी आपको लिख देना है. बट अगर आपने कुछ पर्टिकुलरली फॉलो नहीं किया है जो रूल्स के हिसाब से करना पड़ेगा बट आपने नहीं किया है फॉलो, तो आपको वो फुल डिस्क्लोजर करना है. आपको वो दिखाना है, छुपाना नहीं है कि हमने ये फॉलो नहीं किया है, बट यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा. यू हैव टू डिस्क्लोज इट दैट यू हैव नॉट फॉलोड अ पर्टिकुलर प्रिंसिपल और यू हैव नॉट फॉलोड और वी हैव नॉट फॉलोड अ पर्टिकुलर रूल और मेथड. तो वो आपको दिखाना पड़ेगा हाईलाइट करके कि वी हैव नॉट फॉलोड दिस पर्टिकुलर मेथड even though maybe it is compulsory or mandatory or advisable. So whatever. So if you have not followed it, you have to make it clear that you are disclosing it clearly and fully. Because ये disclosure के ऊपर या ये particular जो होता है कि if you have not fully disclosed things, that means you have concealed things. तो अगर आपने कोई conceal किया है या छुपाया है तो वो users of accounting जो होंगे उनके साथ कोई ना कोई गद्दारी होगी. तो yes, we do not want that. तो हमें यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग को सभी को अच्छे से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है. वी शुड प्रेजेंट द ट्रू एंड फेयर व्यू. हमें कुछ छुपाना नहीं है, तो हमें सब कुछ दिखाना है. फुल डिस्क्लोजर मस्ट बी डन ऑफ वॉट एवर इज इम्पॉर्टेंट. तो उसमें क्या है? मटेरियल इंफॉर्मेशन मस्ट बी डिस्क्लोज्ड. तो जो रेलिवेंट है वो मटेरियल मतलब क्या? रॉ मटेरियल नहीं, यहाँ पे मटेरियल मतलब इम्पॉर्टेंट. तो जो भी इम्पॉर्टेंट है सारे यूजर्स के लिए डिसीजन लेने के लिए, तो वो सारी ही इंफॉर्मेशन आपको अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में रखनी जरूरी है. सो दिस इज कॉल्ड एज फुल डिस्क्लोजर. देन लेट अस अंडरस्टैंड मटेरियलिटी प्रिंसिपल. नाउ मटेरियलिटी मतलब मैंने अभी समझाया कि इट इज इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस. तो जो भी ट्रांजैक्शंस या उसके रिलेटेड जो भी डिटेल्स मटेरियल होते हैं मतलब इम्पॉर्टेंट होते हैं डिसीजन लेने के लिए, तो वो कोई भी डिटेल्स आपको छुपाने नहीं है, रादर आपको वो डिस्क्लोज करने हैं, अच्छे से डिटेल्स लिखने हैं ताकि सारे जो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग है वो अच्छे से रैशनल डिसीजन ले पाए, उनका डिसीजन गलत न हो. वरना अगर हमने कोई बात छुपाई और फिर डिसीजन किसी ने लिया उस बेसिस पे और उसको कोई नुकसान हुआ तो उसकी जिम्मेदारी फिर किसकी होगी? तो उस केस में अगर आपने ठीक से डिस्क्लोज नहीं किया हुआ है और किसी को लॉस होता है, देन द अकाउंटेंट और द ओनर ऑफ द बिजनेस मे बी स्यूड. मतलब उसके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट फाइल कर सकता है अगर डिस्क्लोजर की वजह से कोई प्रॉब्लम है तो. सो यस, अच्छे से सब कुछ डिस्क्लोज कर देना है. देन मटेरियलिटी. An item should be regarded as material if there is a reason to believe that knowledge of it would influence the decision. तो मटेरियल है, कोई आइटम की नहीं है, वो कैसे डिसाइड करेंगे? मतलब कोई जो इन्फॉर्मेशन है, कोई डिटेल्स है, वो मटेरियल है कि नहीं, इंपॉर्टेंट है कि नहीं, ये कैसे डिसाइड करेंगे? कि वो तब डिसाइड कर सकते हैं अगर उस इंफॉर्मेशन के न होने से या होने से यूजर्स कोई अलग डिसीजन लेते हैं. तो आपने वो इन्फॉर्मेशन ली है इसलिए ऐसा ऐसा कोई डिसीजन हुआ है, बट वो इन्फॉर्मेशन अगर नहीं लिखी है, छुपाई है, तो डिसीजन कुछ अलग हो गया. सो इस तरह से आपको पता चलेगा कि which particular detail must be mentioned. All the details which are material with respect to the users of accounting
or their decision making. All those details should be mentioned in your accounts. Now let us understand the next one, that is prudence or conservatism principle. Again prudence यहाँ पे क्या होता है, rationality. एक कॉमन मैन जिसको हम कहते हैं कि कॉमन इंटेलिजेंस जिसके पास है, सर्वसामान्य ज्ञान जिसके पास है, तो ऐसा इंसान जो भी डिसीजन लेगा, जो भी चॉइस करेगा, वो है प्रूडेंस. ओके, दैट इज कॉल्ड एज प्रूडेंस. सो दिस इज द कॉमन अंडरस्टैंडिंग या कॉमन इंटेलिजेंस दैट एवरी पर्सन हैज. तो वो प्रूडेंस या वो कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल क्या कहता है, इसका मीनिंग क्या है, कंजर्वेटिज्म का क्या मीनिंग है कि जो भी प्रोबेबल आने वाले फ्यूचर में जो भी प्रोबेबल कोई ना कोई एक्सपेंडिचर्स हैं या लॉसेस होने वाले हैं, अगर आपको पता है तो आप उसके लिए पहले से ही साइड में पैसा साइड में रख देना, साइड में पैसा सेट असाइड कर देना, ताकि उसके लिए प्रोवाइड करके रखना, ताकि जब भी वो खर्चा आएगा तब आप फाइनेंशियली हिल न जाओ. ओके, सो दिस इज कंजर्वेटिज्म. we all Indians or rather every person on this earth, we provide for our rainy days. ये एक इंग्लिश का अच्छा एक सेविंग है या प्रॉवर्ब है. वी ऑल आर सेविंग फॉर आवर रेनी डेज. रेनी डेज मतलब खाली मानसून का सीजन ऐसे नहीं है. सो मानसून के सीजन में ज्यादा खर्चे हो जाते हैं, इसके लिए मानसून के सीजन के लिए ज्यादा खर्चा साइड में हम लोग रख देते हैं पैसा सेव करके. सो सिर्फ मानसून ही नहीं, तो यहाँ पे जो हमें करना है कि आने वाले कोई भी एक्स्ट्रा के खर्चे होंगे उसके लिए सेविंग करना है. जैसे अभी कोरोना चल रहा है तो यू नेवर नो, तो उसके लिए आपको साइड में खर्चा सेविंग करके ही रखना है कि नहीं, नॉट जस्ट कोरोना, फॉर दैट कोई भी आपको एसेट खरीदना पड़े, कोई भी बिजनेस चालू करना है, कोई अच्छी बात के लिए भी खर्चा हो सकता है कि नॉट जस्ट नेगेटिव न्यूज और व्हाट. सो गुड न्यूज के लिए भी एक अलग से खर्चा आपको साइड में लेना पड़ेगा. जैसे आप न्यू बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो या आप अभी ग्रेजुएशन हो गया आपका, तो अभी आप कुछ न्यू वेंचर स्टार्ट करोगे, कोई पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट करो, तो व्हाटएवर, तो कोई अच्छी खबर के लिए भी आपको सोच के रखना चाहिए कि अच्छा मुझे इसके लिए भी पैसे की जरूरत पड़ सकती है फ्यूचर में, तो मैं अभी से थोड़ा थोड़ा सेविंग कर लूँ या साइड में पैसा रख दूँ. सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज कंजर्वेटिज्म. तो मतलब आने वाले पीरियड के खर्चे के लिए आप अभी से थोड़ी सी तैयारी साइड में करके रखो, वो सेट असाइड करो उतना अमाउंट, दैट इज कंजर्वेटिज्म. और प्रूडेंस, क्योंकि जब हमको प्यास लगेगी तब हम जाके वेल को खोदेंगे, वैसा नहीं चलेगा ना. तो प्यास तो आने वाले पीरियड में लगेगी या कभी भी लग सकती है, ये सोच के अगर हम पहले से ही पानी का इंतजाम कर लें, so that is called as conservatism principle or prudence for that matter of a human being. So what prudence or this conservatism principle says, it says that do not anticipate a profit. Profits so we should not anticipate, so accordingly we should never anticipate the profit. Profit मतलब कोई भी financial gains, कि हमें फ्यूचर में 1 साल में 2 साल में अच्छे प्रॉफिट होने वाले हैं या बहुत ज़्यादा पैसे मिलने वाले हैं, तो वो हमको एंटिसिपेट नहीं करना. चलो पता तो होता है हमको, क्योंकि हमारे पास कोई ना कोई डॉक्यूमेंट होता है उसके रिलेटेड, तो पता होता है कि इतने पैसे 2 साल बाद मिलने वाले हैं, बट उसको दिमाग में रख के अभी से वो कहाँ पे खर्च करने, वो सब प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2 साल में हो सकता है कुछ भी हो जाए और वो पैसे आपको कहीं और भी खर्च करने पड़ सकते हैं. सो यू शुड नॉट एंटिसिपेट दोज गेन्स और प्रॉफिट्स which you are going to receive in future, but we should provide for all the losses and expenses maybe which are going to be there or which may be there in the future. तो फ्यूचर में आने वाले जो भी खर्चे हैं उसके लिए पहले से साइड में कुछ प्रोविजन करके रखो, साइड में पैसा निकाल के रखो जो आने वाले खर्चे हैं उसके लिए, बट आने वाले इनकम से उसके बारे में कोई सोच के रखने की जरूरत नहीं है. दिस इज व्हाट द कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल इज सेइंग. That is, we should consider all prospective losses and expenditures, but we should never consider the prospective profits. Okay, so this is relating to the conservatism principle. Now next is cost concept or historical cost concept. According to this, asset is recorded in the books of accounts at the price paid to acquire it and not at the any future cost or market value. Because तो आज अगर हमने फॉर एग्जांपल अगर हमने आज कोई एसेट खरीदा है, मशीन खरीदा है, तो उसकी आज की वैल्यू पे हम बुक्स में लिखेंगे कि टुडेज वैल्यू इज दिस, वी हैव परचेज एन एसेट.
हो सकता है उसी एसेट की वैल्यू कल या परसों या नेक्स्ट वीक नेक्स्ट मंथ कुछ और हो सकती है, बट हम वो कंसिडर नहीं कर रहे, मार्केट वैल्यू नहीं कंसिडर कर रहे। हमने जिस दिन वो खरीदा है उस दिन की वैल्यू पे हम अकाउंट्स के बुक में उसकी एंट्री करेंगे। दिस इज कॉल्ड एज हिस्टोरिकल कॉस्ट, मतलब टुडेज कॉस्ट इज कॉल्ड एज हिस्टोरिकल कॉस्ट। बट टुडेज कॉस्ट जो हमने एंट्री कर दी है वो, क्योंकि टुडेज कॉस्ट इन द मार्केट हमारा ट्रांजैक्शन हो जाने के बाद, जैसे हमने 11 बजे आज ट्रांजैक्शन कर लिया, उस समय कॉस्ट कुछ 5 लाख थी, बट 2 घंटे में 3 घंटे में उसकी कॉस्ट अगर बढ़ गई है या किसी और दुकान में वही आइटम ज़्यादा महंगा बिक रहा है तो मार्केट वैल्यू कहीं और बता रही है कुछ, तो वो फिर हमारे बुक्स में तो नहीं आएगी, क्योंकि हमने तो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, मतलब हम जब भी हिस्ट्री मतलब क्या, पास्ट, तो हमारा ट्रांजैक्शन हो गया तो वही हमारी कॉस्ट है। तो हमारा कॉस्ट कंसेप्ट या हिस्टोरिकल कंसेप्ट सेज दैट व्हेनेवर वी हैव एंटर्ड इनटू द ट्रांजैक्शन वही आपको कॉस्ट लेनी है एसेट्स को रिकॉर्ड करने के लिए। सो वॉट एवर मे बी द मार्केट वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट, बट वॉट वॉज कॉस्ट फॉर यू इज हिस्टोरिकल कॉस्ट फॉर यू। सो दिस इज द कॉस्ट कंसेप्ट। Then let us understand the next, that is matching concept or matching principle. Now accordingly, an important objective of business is to determine profit periodically. It is necessary to match the revenues of the period with the expenses. तो हम लोग जब प्रॉफिट डिटरमाइन करते हैं बिजनेस का तो क्या करते हैं, हम लोग टैली करके देखते हैं, हम लोग बैलेंस करके देखते हैं। क्या बैलेंस करते हैं कि रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस हमारे कैसे जा रहे, कितने हैं, टैली हो रहे, क्या हमने कितना रेवेन्यू अर्न किया और कहाँ कहाँ खर्चा किया। तो दिस इज व्हाट वी ट्राई टू बैलेंस एंड चेक। तो ये है मैचिंग कंसेप्ट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैचिंग प्रिंसिपल। सो प्रॉफिट अर्न बाय बिजनेस ड्यूरिंग पीरियड कैन बी करेक्टली मेजर्ड ओनली व्हेन द रेवेन्यू अर्न ड्यूरिंग दैट पीरियड इज मैच्ड विद एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू अर्न दैट रेवेन्यू। तो वो रेवेन्यू अर्न करने के लिए आपने जो भी खर्चे किए होंगे उसको पहले मैच कर देना है, तो भी हम कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट अच्छे से ठीक से निकाल पाएंगे। एंड व्हेन रेवेन्यू इज मोर देन सच एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड टू अर्न दिस रेवेन्यू, तो हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट है। मतलब रेवेन्यू अर्न करने के लिए भी कोई खर्चे आपको करने पड़ेंगे ना, वो तो उसमें से आपको लेस कर देने पड़ेंगे, ओनली देन वी कैन नो द नेट रेवेन्यू और प्रॉफिट। सो दिस इज कॉल्ड एज मैचिंग कंसेप्ट और मैचिंग प्रिंसिपल। और ये जब कंसेप्ट फॉलो करते हैं तब हमको कोई एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्योंकि हमने रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को मैच किया हुआ है, बट जो पहले से प्रीपेड है, पेड इन एडवांस है, तो फिर उसको आपको पर्टिकुलर रेवेन्यू से आप जोड़ सकते हो कि नहीं, whether you can correlate particular expenditure that is prepaid expenditure, whether you can correlate it to particular product or not, or particular period or not. So in that case you have to make an adjustment. Similarly, adjustment is made for delayed payments, that is outstanding expenses. तो ये दोनों के लिए आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी अगर आप मैचिंग कंसेप्ट या मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो करते हो तब। देन नेक्स्ट इज ड्यूअल एस्पेक्ट और ड्यूअलिटी प्रिंसिपल। नाउ इन दिस केस, according to this concept, every transaction entered into by enterprise has two effects or two aspects. कौन से है ये एस्पेक्ट? एक तो डेबिट है, दूसरा क्रेडिट है, और वो भी इक्वल अमाउंट का होगा। तो ये टू इफेक्ट्स है, एक डेबिट है एक क्रेडिट है, या टू एस्पेक्ट्स है, डेबिट है एक क्रेडिट है। हम कॉइन के टू साइड्स देख सकते हैं, कोई भी कॉइन होगा 5 रुपीज का 10 रुपीज का, उसके दो साइड्स होते हैं, छापा काटा ऐसे बोलते हैं ना, तो वैसे ही है, एक है डेबिट एक है क्रेडिट, एक ही ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट्स है, इसीलिए कहते हैं ड्यूअल एस्पेक्ट और ड्यूअलिटी प्रिंसिपल। फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट इन वन और मोर अकाउंट एंड वाइस वर्सा। मतलब एवरी डेबिट अमाउंट के लिए एक क्रेडिट अमाउंट जरूर होगा, और हो सकता है वो एक से ज्यादा अकाउंट्स में भी हो, या एवरी क्रेडिट अमाउंट के लिए एक डेबिट अमाउंट जरूर होगा, कोई भी अकाउंट में वो होगा पर्टिकुलर रिलेवेंट ट्रांजैक्शन के हिसाब से। सो यस, दिस इज ड्यूअल एस्पेक्ट और ड्यूअलिटी प्रिंसिपल। और इसी प्रिंसिपल को ध्यान में रख के वी हैव एन अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन मतलब सबसे पहले बैलेंस होना, या तराजू जिसको बोलते हैं ना, हम बिजनेस करते हैं तो हम तौलते कैसे हैं वेजिटेबल्स या ग्रोसरी, ग्रीन ग्रोसरी या ग्रोसरी हम तौलते कैसे हैं? तराजू से, या डिजिटल आपका बैलेंस स्केल होता है वो। तो उसमें क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड तराजू में, है ना।
तो वैसे ही इक्वेशन में होता है। इक्वेशन में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड साइड, और उसमें क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या होता है, एसेट्स मस्ट बी इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो ये दो साइड से आपको टैली करके हमेशा रखनी होती है, बैलेंस करके ही रखनी होती है, और ड्यूअल एस्पेक्ट की वजह से ये हमेशा बैलेंस्ड रहती है या रहनी चाहिए। अगर ये बैलेंस नहीं है, इम्बैलेंस्ड है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने अकाउंट्स लिखते वक्त गलती की है। सो यस, फ्रॉम दिस ड्यूअल एस्पेक्ट यू कैन ऑल्सो फाइंड सम एरर्स in your accounting if at all you have made them. Then this fundamental equation will always remain good. ये हमेशा वैसी ही रहेगी। It is fundamental equation, rather it is generally universally accepted, I would say. ये इंडिया में भी वही इक्वेशन है, सेम है। यूएस में, यूके में जाओगे कहीं भी, crossing the boundaries of India, if you are going to any foreign country, the same equation is followed for accounting. You can say accounting equation is same, that is assets is equal to ओनर्स इक्विटी प्लस क्लेम ऑफ आउटसाइडर्स, और ओनर्स इक्विटी और कैपिटल प्लस क्लेम ऑफ आउटसाइडर्स इज इक्वल टू एसेट। अब जो तीन आइटम्स है इसमें, यू कैन ट्विस्ट अदर वे राउंड और सेम फॉर्मूला को अलग अलग वे से प्रेजेंट कर सकते हो, बट द बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन विल रिमेन सेम एवरी टाइम। नाउ लेट अस रिफर टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल और कंसेप्ट, दैट इज रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। Now revenue recognition concept मतलब revenue is considered to have been realized when the transaction has been entered into and the obligation to receive the amount is established. तो same thing है हमारा revenue recognition मतलब क्या है कि हमें इस particular principle के हिसाब से we have to consider it as revenue, consider the income as revenue, या consider पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में हमको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कब करना है, रिकॉग्नाइज कब करना है मतलब लिखना कब है एंट्री करके अकाउंट्स में। सो इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन द ट्रांजैक्शन हैज बीन एंटर्ड इनटू। रेवेन्यू को रियलाइज करना है मतलब रिकॉर्ड कब करना है, मानना कब है कि रेवेन्यू हुआ है, तो ये कब करना है, व्हेन द ट्रांजैक्शन इज एंटर्ड इनटू एंड द ऑब्लिगेशन टू पे हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। ट्रांजैक्शन हुआ है मतलब आपने सेल्स का ट्रांजैक्शन है तो गुड्स एक्सचेंज कर दिए हैं, अपने गुड्स को भेज दिया है कस्टमर के पास। हो सकता है उसका पेमेंट अभी तक आपको नहीं मिला है, बट गुड्स तो बेच दिए हैं आपने। सो दैट इज आपने एस्टैब्लिश कर दिया है कि सेल ट्रांजैक्शन हुआ है एंड ऑब्लिगेशन टू पे हैज बीन एस्टैब्लिश्ड कि द कस्टमर मस्ट नाउ पे दैट पर्टिकुलर अमाउंट, गुड्स हैव बीन सेंट टू द कस्टमर। तो आपको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कब करना है, जब ये ट्रांजैक्शन हो गया है और गुड्स एक्सचेंज हो चुके हैं या गुड्स को आपने सेंड कर दिया है कस्टमर के पास। सो दिस इज कॉल्ड एज रेवेन्यू रिकॉग्निशन। देन इज वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट। नाउ द वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट होल्ड्स दैट अकाउंटिंग शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। तो एक तो वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, ये जब हम देखते हैं तब हमें ये मान के चलना है कि सबसे पहले हमें अपना पर्सनल बायस इसमें नहीं लाना है, अपनी कोई भी खुद की मान्यता, धारणा, आपका मानना, आपका ओपिनियन आपको अकाउंटिंग करते वक्त उसमें मिक्स नहीं करना है। यू शुड नॉट मिक्स योर ओन ओपिनियन while writing the accounts of certain business. Rather you should follow what has been given as rules, principles, etc. So वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट में हम कहते हैं कि दे ऑल दी मेजरमेंट्स या ऑल दी अकाउंटिंग एंट्रीज और रिकॉर्ड्स शुड हैव सर्टन वेरीफाइबल एविडेंस। तो आपने जो भी एंट्री की है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में उसका कोई ना कोई एविडेंस या प्रूफ आपके पास होना जरूरी है जो आप वेरीफाई कर सकते हो। ओके, सो ये किसके लिए इम्पोर्टेंट है, खुद ओनर के लिए। अगर अकाउंटेंट ने अकाउंटिंग कर दिया, रिकॉर्ड्स कर दी, एंट्रीज, बट कभी ओनर ने पूछा कि प्लीज मुझे इसका दिखाओ तो बिल मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, तो एंट्री तो उसने देख ली कि ऐसा ऐसा एंट्री में लिखा हुआ है, बट उसका प्रूफ चाहिए तो आपको कुछ ना कुछ दिखाना पड़ेगा तो कि बिल से एंट्री की है, कि कैश मेमो से एंट्री की है, कि कोई वाउचर था या कोई इनवॉइस था, किसके ऊपर से पर्टिकुलर एंट्री आपने लिखी है, तो उसका एक एविडेंस या प्रूफ आपके पास होना चाहिए जो ब्लैक एंड व्हाइट में या पीस ऑफ पेपर पे होना चाहिए, जरूरी है। So that is called as something voucher और cash memo या bill या receipt या invoice या bill whatever. So ये कुछ भी verifiable evidence आपके पास होना चाहिए, तभी आप कह सकते हो कि आपके पास करेक्टली रिटर्न ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है।
So these supporting documents may be cash memo, invoices, sales bills, receipts, etc. So you have to have certain verifiable evidences with you, and from these evidences only actually you have to record the transactions. So ये evidences important है, क्योंकि ऑडिटर भी जब ऑडिट करता है आपके अकाउंट्स का, तब ये इसी वाउचर्स फाइल से या बिल फाइल से एक एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड या चेक करता जाएगा, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन हुआ है तभी ये एंट्री हुई है, एंड इट इज एविडेंट या इट इज सीन फ्रॉम द पर्टिकुलर कैश मेमो या बिल या इनवॉइस. तो वो चेक करना आना चाहिए, एंड दैट ऑडिटर मस्ट बी एबल टू चेक इट फ्रॉम द वाउचर फाइल, बिल फाइल, इनवॉइस फाइल, वॉट एवर. So every transaction must be verifiable with the supporting proof or evidence. So these accounting standards in India, these are issued by Chartered Accountants Institute, the Institute of Chartered Accountants of India. तो ये जो इंस्टीट्यूट इशू करती है सारे के सारे प्रिंसिपल्स या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, वो रिकमेंडेटरी है और मैंडेटरी भी है कुछ फर्म्स के लिए. तो ये जो इशू करेंगे आपको वो फॉलो करने हैं अकाउंट्स लिखते वक्त एज एन अकाउंटेंट, तभी आपके अकाउंट्स सही तरीके से लिखे गए हैं ऐसा माना जाएगा. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर सेट ऑफ गाइडलाइंस that is generally accepted accounting principles that are followed for preparation or presentation of financial statements. तो आपको financial statements prepare करने के लिए या present करने के लिए जो भी accepted practices है accounting world में, तो वो आपको follow करनी है. इस तरह से accounting standards बनते हैं या बनाए गए हैं. Okay, then the Council of Institute of Chartered Accountants of India will issue these accounting standards for India. Now let us understand the nature of accounting standards. तो accounting standards का nature में क्या है? Highlighting points. These are guidelines providing the framework so that credible financial statements are prepared. ये एक तरीके से guidelines है कि आपको accounting records कैसे maintain करने हैं, कैसे लिखने हैं. तो जिसको शायद पता नहीं होगा तो पहले आपको ये पता कर लेने हैं कि कौन से accounting standards इंडिया में ज़्यादा important है और वो आपको ज़रूर follow करने हैं. तो आपको अगर पता नहीं है तो you should know which are these. You should read them, you should practice them, and then use them while or apply them while making the accounting records of any business organization. The objective of setting the standards is to bring uniformity in accounting practices to ensure transparency, consistency and comparability. ये accounting standards बनाए क्यों है या use करने के लिए compulsion क्यों है? ताकि आपके accounting records में कोई ना कोई टाइप की यूनिफॉर्मिटी देखने को मिले, समथिंग कॉमन देखने को मिले, एंड कोई ट्रांसपेरेंसी भी हमें पता चले कि ये अभी जो भी लिखा है सब कुछ ठीक है, दिख भी रहा है अच्छे से, इट इज एविडेंट. देन कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हैं, एंड कंपेरेबिलिटी भी ये एक वर्च्यू हो सकता है. तो अगर आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ठीक से अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लिखे गए हैं तो सबसे पहले तो यूनिफॉर्म दिखेगा, सब कुछ अच्छे से मेंटेन किया हुआ है. वरना एक ईयर आपने कोई कैश रजिस्टर में लिखा हुआ है, एक ईयर कंप्यूटर में डाला हुआ है एंट्रीज, एक ईयर फिर से कोई और न्यू रजिस्टर लाए हो उसमें लिखा है, तो ये क्या है? यूनिफॉर्मिटी नहीं है इसमें. कुछ यूनिफॉर्मिटी नहीं है तो आपको कुछ अगर ढूंढना भी है तो जल्दी से आप ढूंढ नहीं पाओगे, उसको लोकेट नहीं कर पाओगे. कोई एरर होगा या फ्रॉड होगा, मिस्टेक होगी तो जल्दी से आप उसको ढूंढ नहीं पाओगे. सो यूनिफॉर्मिटी नहीं है तो ये पॉसिबल ही नहीं है. सो यूनिफॉर्मली मेंटेन किया हुआ है तो तुरंत आपको अगर कुछ चाहिए तो आप देख सकते हो कि कौन से पेज पे लिखा है, कौन सी अकाउंट में एंट्री की है. सो यू कैन चेक इफ इट इज यूनिफॉर्मली मेंटेन, कंसिस्टेंटली मेंटेन एवरी ईयर. देन कंपेरेबिलिटी, हम उसको कंपेयर कर सकते हैं अपने ही पिछले साल के रिकॉर्ड से, या फिर हम कंपेयर कर सकते हैं किसी और बिजनेसमैन के रिकॉर्ड से, क्योंकि हमें पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशू होते रहते हैं, पब्लिश होते रहते हैं न्यूज़पेपर्स में, इकोनॉमिक टाइम्स में या कई और बिजनेस जर्नल्स में. तो हम अपने रिकॉर्ड्स उनके रिकॉर्ड से थोड़ा बहुत कंपेयर करके वी कैन एनालाइज आवर पोजीशन इन द मार्केट. सो अगर हमें कोई और डिसीजन लेना है कि ज़्यादा एडवर्टीजमेंट या सेल्स प्रमोशन के एफर्ट्स लेने या खर्चे करने हैं, तो वी कैन टेक द डिसीजन अकॉर्डिंगली इफ वी कंपेयर आवर रिकॉर्ड्स ऑफ प्रीवियस ईयर्स और आवर रिकॉर्ड्स विद द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ अदर कंपनीज और अदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल. सो कंपेरेबिलिटी भी हमें यहाँ पे पता चल जाएगी. या इट इज वर्च्यू प्रोवाइडेड बाय अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स विच आर बेस्ड ऑन और प्रिपेयर्ड एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. So this comparability virtue is provided by accounting standards as such which are followed.
देन ट्रांसपेरेंसी, कि यहाँ पे कोई छुपाने जैसी चीज नहीं है, सब कुछ ओपन बुक की तरह है, एंड इट इज ट्रांसपेरेंट, इट इज विजिबल एंड वेरीफाइबल। इसमें कोई फ्रॉड या एरर की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अगर कुछ फ्रॉडुलेंट दिख भी रहा है, कुछ फिशी नजर भी आ रहा है, तो भी आप उसको चेक कर सकते हो, बिकॉज वेरीफाइबल एविडेंस इन द फॉर्म ऑफ वाउचर, बिल, इनवॉइस इज देयर इफ वी आर फॉलोइंग दी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। Then next is accounting standards are prepared keeping in view the business environment and laws of country. तो ये accounting standards कैसे बनाए जाते हैं? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाती है, वो सबसे पहले जब ये स्टैंडर्ड्स बनाती है तब पहले बिजनेस एनवायरनमेंट को ध्यान में रखेगी। बिजनेस एनवायरनमेंट हमारे इंडिपेंडेंस जब मिला इंडिया को तब का अलग था, 1947 में बिजनेस एनवायरनमेंट थोड़ा डिफरेंट था। फिर होते 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 अब तक जो एनवायरनमेंट है वो थोड़ा डिफरेंट है। अब हमारी फ्री इकोनॉमी है ऐसा कह सकते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी है ऐसा कह सकते हैं। उस समय की इकोनॉमी थोड़ी अलग थी, उस समय फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स थे या और भी कोई कंस्ट्रेंट्स थे। अब थोड़े बहुत वो कंस्ट्रेंट्स तो दूर हो गए हैं। सो बिजनेस एनवायरनमेंट को कंसिडर करके ही हमारी जो इंस्टीट्यूट है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू करती हैं, एंड दे ऑल्सो टेक इन द कंसिडरेशन द लॉ ऑफ द कंट्री। तो हमारे कंट्री में क्या लॉ है उस हिसाब से ही वो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाएगी ये इंस्टीट्यूट, क्योंकि स्टैंडर्ड्स में कुछ अलग लिख दिया और हमारा लॉ ऑफ कंट्री कुछ अलग है, फिर वो कॉन्ट्रडिक्टरी बना जाएगा, फिर उसमें डिस्प्यूट भी हो सकती है। और इसलिए कॉन्फ्लिक्ट न हो इसके लिए द इंस्टीट्यूट विल इशू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ओनली एज पर द लॉज ऑफ द कंट्री और कंसिडरिंग द लॉ ऑफ द कंट्री ऑल्सो। देन नेक्स्ट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर मैंडेटरी इन नेचर। मैंडेटरी मीन्स कंपल्सरी। ये स्टैंडर्ड्स आपको जरूर और जरूर फॉलो करने ही हैं। अगर आपने ये फॉलो नहीं किए तो कोई ना कोई हो सकता है कि आपके ऊपर कोई ना कोई मेमो तरीके से आपका लिखा जाएगा, या मे बी दे विल पुट इन राइटिंग कि आपने ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज नहीं किया है। तो जो भी इसको ऑडिट करता है वो लिखेगा वहां पे कि दिस पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैज नॉट बीन followed by this accountant or by the businessman। तो यस, आपको ये जरूरी है कि आप वो फॉलो करो। अगर आपने नहीं फॉलो किया है तो या तो खुद आपको लिख देना है डिस्क्लोजर में कि हमने फॉलो नहीं किया, या फिर वो जो ऑडिट करेगा वो लिख देंगे कि ये इन्होंने फॉलो नहीं किया। सो दिस इज मैंडेटरी इन नेचर, इट हैज टू बी फॉलोड। देन नेक्स्ट, standards have also been made flexible in the sense that where alternative accounting practices are acceptable, enterprise may adopt them। कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी एरिया में वो पर्टिकुलर अकाउंटिंग प्रैक्टिस डिफरेंटली फॉलो की जाती है। जैसे पर्टिकुलर एरिया में या पर्टिकुलर बिजनेस में भी मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, कोई लोग रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड फॉलो करते होंगे, कोई स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड फॉलो करते होंगे डेप्रिसिएशन के लिए। तो वो कौन सी मेथड फॉलो करते हैं सारे के सारे इंडस्ट्री वाले? तो यस, देयर इज फ्रीडम टू मेक चॉइस ऑफ एनी पर्टिकुलर वन मेथड। सो आपके पास वो चॉइस है, बट कोई ना कोई मेथड तो आपको जरूर फॉलो करनी है, या गिवन लिस्ट अगर है कि इसमें से कोई एक मेथड फॉलो करो तो यस, उसमें चॉइस है, आपको ऑप्शंस है, बट कोई ना कोई मेथड आपको जरूर फॉलो करनी है ताकि आप अच्छे से वो अकाउंट्स को शो कर सको। देन लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। They are the same as we have already discussed till now, that is minimize the diverse accounting policies and practices which aim to eliminate them to the extent possible। तो अलग अलग अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस अगर अलग अलग लोग फॉलो करते होंगे तो सबसे पहले यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी, तो हम कंपेयर भी नहीं कर सकेंगे, तो ट्रांसपेरेंसी भी नहीं होगी, क्योंकि अलग अलग फॉलो करते होंगे तो फ्रॉड होने के चांसेस मैक्सिमम है। तो इसीलिए एक तो यूनिफॉर्म होना चाहिए, सब लोग यूनिफॉर्मली फॉलो करें, ऐसे स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मिनिमाइज द डाइवर्स अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। क्योंकि जिसने गुजराती में सीखा है तो वो गुजराती में एंटर करेगा, जिसने हिंदी में सीखा है तो हिंदी में एंटर करेगा। हो सकता है उनके जो वर्ड्स है, टेक्निकल टर्म्स है, अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग बोलते होंगे। हो सकता है जो ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट है वो कुछ लोग फॉलो नहीं भी करें, वो सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो करें। तो फिर अगर ऐसा अलग अलग होगा तो यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी, कंपेरेबिलिटी नहीं होगी, फिर ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी, देयर इज अ चांस ऑफ फ्रॉड और एरर और मिस्टेक ऑल्सो। सो यस, टू मिनिमाइज सच डाइवर्स पॉलिसीज and to bring some uniformity and eliminate the diversities to the extent possible। तो ये हमारा है एक ऑब्जेक्टिव कि टू अवॉइड
or to eliminate the diverse accounting practices. We are formulating or recommending or making it mandatory that these accounting standards must be followed by the accountants. Then promote better understanding of financial statements. जब similar type of accounting policy सब लोग follow करेंगे तो जो users of accounting records हैं तो उनके लिए भी समझना आसान हो जाएगा, क्योंकि now if at all the same practices are followed, same standards are followed, मतलब उनको जो users of accounting हैं उनको बस standard terms समझने हैं कि आप डेबिट क्रेडिट बोलते हो या जमा नावे उधार बोलते हो। तो जो अकाउंटिंग प्रैक्टिस सालों से चली आ रही है या जो रेकमेंडेबल है आपने अगर वो प्रैक्टिस में लाई है तो जो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग है वो उस टर्म्स को भी समझ लेंगे। जैसे अभी इंटरनेट, ईमेल या व्हाट्सएप पे हम लोग पूरा वर्ड नहीं लिखते हैं, मे बी वी यूज द शॉर्टर स्पेलिंग और शॉर्ट फॉर्म ऑफ सर्टन वर्ड्स, है ना। तो खाली YOU लिखने की जगह खाली U लिख देते थे अल्फाबेट, ARER लिखने की जगह पे खाली R लिख देते हैं। सो दिस इज व्हाट द प्रैक्टिस इज टुडे अपॉन द सोशल मीडिया और इंटरनेट और व्हाटएवर, व्हाट्सएप चैट एक्सेट्रा। तो ये आज की प्रैक्टिस इस तरह की है। नाउ इट इज रिगार्डेड अ स्टैंडर्ड कि आप अगर ऐसा नहीं लिखते हो तो यू आर ऑड मैन आउट, अगर आप फुल स्पेलिंग लिखते हो तो यू आर ऑड मैन आउट, ऐसा समझा जाए। सो दैट इज डिफरेंट, दैट इज जस्ट एन एग्जाम्पल। बट प्रमोट बेटर अंडरस्टैंडिंग कब होगी? जब हम सेम अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस सब लोग फॉलो करेंगे तो जो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग हैं उनको भी एक आदत पड़ जाएगी कि यस इसका मीनिंग तो ये है और इन लोगों ने ये फॉलो किया, मतलब ये अकाउंट ठीक से लिखे गए हैं तो रैशनल डिसीजन पॉसिबल है। सो यस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूजर्स, तो जो भी यूजर्स जिस लैंग्वेज में या जिस तरह से समझेंगे वो प्रैक्टिसेस आपको अच्छे से फॉलो कर देनी है। देन अंडरस्टैंड सिग्निफिकेंट पॉलिसीज एडॉप्टेड एंड अप्लाइड। तो एक तो आपने अलग अलग पॉलिसीज जो अप्लाई की होंगी या फॉलो की होंगी उसको समझने में भी आसानी रहेगी। इफ द अकाउंटेंट हैज द नॉलेज ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड मे बी ही हैज अप्लाइड दोज प्रॉपरली वाइल मेंटेनिंग द अकाउंट्स ऑफ द कंपनी और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो जो भी इम्पोर्टेंट पॉलिसीज फॉलो की गई है वाइल राइटिंग द अकाउंट्स तो उसके बारे में भी पता चल जाएगा। जो भी यूजर्स ऑफ अकाउंट है जो रीड करेंगे अकाउंट्स, आपका चेक करेंगे, ऑडिट करेंगे, सबको वो तुरंत पता चल जाएगा कि ओके दिस पॉलिसी इज फॉलोड इन दिस पर्टिकुलर फर्म। सो यस, अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर सिग्निफिकेंट पॉलिसी विच इज फॉलोड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, तो वो पता चल जाएगी। वो भी एक ऑब्जेक्टिव है हमारे स्टैंडर्ड्स का। देन फैसिलिटेटिंग मीनिंगफुल कंपैरिजन। यस, व्हेन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर अप्लाइड व्हाइल प्रिपेयरिंग द अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स, हम कह सकते हैं कि मीनिंगफुल कंपैरिजन पॉसिबल है। हमने पिछले साल कोई अलग से अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो की थी, इस साल कोई अलग अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, अगले साल कोई और ही अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करें। सो इन तीनों सालों में कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता क्योंकि अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसीज हम फॉलो कर रहे हैं। बट अगर हमने सेम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या पॉलिसी फॉलो की है तीनों सालों में तो फिर हम लोग पिछले साल के अकाउंट्स के रिकॉर्ड्स के साथ इस साल के रिकॉर्ड्स, एक्चुअल रिकॉर्ड जो है हम लोग कर सकते हैं कंपैरिजन। एंड व्हेन वी कैन कंपेयर थिंग्स we can make some analysis and we can draw some conclusions or inferences, so we can make certain interpretations also, and ये interpretations हमें forecasting या predictions करने के लिए, estimations करने के लिए जो future के लिए होते हैं, तो future estimation के लिए भी आसानी हो जाएगी हमें अगर हम अच्छे से accounting standards को follow करते हुए accounting record लिखते हैं तो। so comparison is possible in that case. Then enhancing the reliability of the statements. तो जब हमने सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो मैंडेटरी है, जो रिकमेंडेबल है, एडवाइजेबल है, वो सारे अगर हमने फॉलो किए हैं अकाउंट्स लिखते वक्त तो हमारे जो अकाउंट्स है मीनिंगफुल तो होंगे होंगे, रेलिवेंट भी होंगे और रिलायबल भी होंगे, मतलब भरोसे लायक भी होंगे। कोई भी आप पे भरोसा कर देगा इफ यू हैव फॉलोड दीज अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस और स्टैंडर्ड्स, योर अकाउंट्स विल शो अ ट्रू एंड फेयर व्यू। तो ऑथेंटिक है आपके अकाउंट्स, ऐसा समझा जाएगा, जेन्युइनली आपने हर एक एंट्री लिख दी है उसमें, ऐसा माना जाएगा। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द यूटिलिटी ऑफ दीज स्टैंडर्ड्स। द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स सर्व द फॉलोइंग पर्पसेस। नाउ व्हिच आर दीज पर्पसेस? द फर्स्ट वन इज टू प्रोवाइड द नॉर्म्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच द स्टेटमेंट्स आर टू बी प्रिपेयर्ड। स्टैंडर्ड्स मतलब क्या है? कोई ना कोई बेंचमार्क है, कोई ना कोई नॉर्म्स डिसाइड किए गए हैं कि आइडियाज डिसाइड किए गए हैं कि चलो दिस हैज टू बी अचीव्ड, दिस हैज टू बी अप्लाइड। आपके लिए बोल दिया गया कि दिस इज अ नॉर्म, तो आपको ये फॉलो कर देना है। ओके, नेक्स्ट
द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंश्योर यूनिफॉर्मिटी। हाँ, हमने ऊपर भी देखा ऑब्जेक्टिव्स में या एडवांटेजेस में कि आपकी यूनिफॉर्मिटी एंश्योर हो जाती है इसमें कि सब कुछ अच्छे से उसी तरह से फॉलो कर रहे हैं सब लोग। सो देयर इज नो चांस ऑफ एनी गोइंग अपार्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर यूनिफॉर्मिटी, है ना। यूनिफॉर्म नहीं है ऐसा कुछ नजर नहीं आएगा, एवरीथिंग इज यूनिफॉर्म नजर आएगा अगर आप अच्छे से रिकॉर्ड्स को लिखते हो बेस्ड ऑन द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। देन देयरआफ्टर हाँ, यूनिफॉर्मिटी जब होगी तब कंपेरेबल भी होगा, क्योंकि एक जैसा कुछ ना कुछ कॉमन आपने फॉलो किया है। देन कंपैरिजन विल बी द वर्च्यू एंड योर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स विल बिकम मोर मीनिंगफुल देन एवर। देन दीज स्टैंडर्ड्स ऑल्सो क्रिएट कॉन्फिडेंस अमंग द यूजर्स। जब आपने अच्छे से रिकॉर्ड मेंटेन किए हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, तब आपके यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग जो है वो आप पे भरोसा करेंगे, है ना। आप पर विश्वास करेंगे कि यस, ये जो लिखा गया है इस कंपनी ने या इस ऑर्गेनाइजेशन ने जो लिखा है, अकाउंटेंट ने जो लिखा है बहुत सही लिखा है, उसमें कोई गलती या फ्रॉड की गुंजाइश नहीं है। सो अपेरेंटली यस, योर रिकॉर्ड्स एक्सेट्रा विल शो यूनिफॉर्मिटी, कंपेरेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी दिखेगी, तो रिलायबल भी दिखेंगे कि यस वी कैन रिलाई अपॉन दिस कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन, तो हम इस पर भरोसा कर सकते हैं, उनकी जेन्युइननेस दिखेगी। देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हेल्प दी ऑडिटर्स इन ऑडिटिंग। अगर आपने अच्छे से स्टैंडर्ड्स फॉलो कर दिए हैं तो ऑडिटर का काम थोड़ा कम हो जाएगा, रादर उसके लिए आसान हो जाएगा कि किस तरह से आपके अकाउंट्स को ऑडिट किया जाए या चेक किया जाए या वेरिफिकेशन किया जाए। After that, there are certain limitations of accounting standards. Now, which are these limitations? There are two notable limitations. So, first is accounting standards are man-made. So, yes, ये man-made है and hence it does not pass the verification test always. क्योंकि standards man-made है तो loop holes भी man-made हो ही सकते हैं. What are loop holes? कोई ना कोई बीच का रास्ता कि चलो आप रूल में तो बिठा रहे हो बट बीच का रास्ते से आप लूप होल में से आप निकल रहे हो, सो मे बी योर फ्रॉड मे नॉट बी डिटेक्टेड। अगर कोई फ्रॉड हो गया है तो डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि मैन मेड ही रूल्स हैं और मैन को पता है कि किस तरह से उस रूल को अवॉइड करना है, एलिमिनेट करना है। सो येस, देयर इज ऑलवेज अ चांस दैट योर फ्रॉड और एरर ऑल्सो मे नॉट बी लोकेटेड ईजिली। तो जस्ट फ्रॉड है ऐसा नहीं है, एरर्स या मिस्टेक भी लोकेट करना कभी कभी टाइम कंज्यूमिंग या इट रिक्वायर्स मोर एफर्ट समटाइम्स, कि छोटी सी गलती है पर वो ढूंढने में भी आपके काफ़ी टाइम आपको लग सकता है अगर आपने अच्छे से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वगैरह फॉलो नहीं किया है तो। फॉर एग्जांपल सिंगल एंट्री में बहुत मुश्किल होगा क्योंकि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स होते हैं, तो आपको अगर कहीं गलती हो गई है तो वो ढूंढना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। देन नेक्स्ट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर बेस्ड ऑन द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लॉज ऑफ द कंट्री, दे चेंज ऑफन टू मीट द चेंजेस। अब ये लॉज ऑफ कंट्री के हिसाब से बनाए गए या बिजनेस एनवायरनमेंट के हिसाब से बनाए गए हैं, इसका मतलब दे आर सब्जेक्ट टू चेंज अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। तो अगर एनवायरनमेंट आपका बहुत ज़्यादा जल्दी चेंज हो रहा है तो हो सकता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को भी चेंज करना पड़े। दैट मे बी द रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम एट मे बी इफ देर इज चेंज इन द एनवायरनमेंट, दैट इज इकोनॉमी। तो अगर इकोनॉमी में बहुत सारी मंदी है, जैसे अभी लॉकडाउन पीरियड में बहुत सारे बिजनेस हाउसेस क्लोज हो गए थे या बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ किया गया था, तो ऐसे सिनारियो में मे बी द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मे बी रिलैक्स्ड और सम न्यू स्टैंडर्ड में इवॉल्व एज अ रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम। तो यस, टाइम के हिसाब से या चेंजेस के हिसाब से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी चेंज हो सकते हैं। सो दिस इज व्हाट द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग।